Hello and welcome to Ignited Minds. Today, in this The Hindu newspaper analysis, we will be discussing all these news articles which are highlighted on your screens. As you can see, there are 11 news articles which we are going to discuss in this news analysis. So, again, I welcome you all to join this discussion with me on our YouTube channel. Along with that, I also want all of you to connect to us through our other courses. Like we recently have announced JKPSC test series for our new upcoming this JKPSC vacancies, as JKPSC has highlighted and released its notification for 90 vacancies, to which its tentative date for the advertisement for the exam is 10th of the November 2024. Further, we also have running batches for other courses regarding to JKSSB. You can inquire for that in our on our social media handles and on our phone numbers, which are rightly available at our website also. Done. So let's just briefly go through all of these news articles which are highlighted on your screens. Workup boards, they are basically part of your polity, and we'll be going through what is a work and why are there work boards and what are their functions. This psychology of extravagance, I want you to note down some of the points in this editorial because these points are very much important in its essence. Further, there are some points related to polio epidemics declared in Gaza and how much deep its impact is going to be. Medieval minded law or the UP's anti conversion law is being criticized in this article. Further, क्रिटिसिज्म ही नहीं है, ये जो अमेंडमेंट लॉ है इसका ये भी देखना है दैट ये जो लॉ है ये 2023 में आया था और 2024 में इसका अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आया है, तो वो अमेंडमेंट भी देखेंगे। इसके साथ साथ देयर इज एन एनालिसिस ऑफ some positive points and some negative points about the budget which recently was placed in parliament regarding its allocation to science and technology. इसके साथ साथ there is Ladakh which is demanding sixth schedule from multiple months now. पिछले साल से ही ये डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल का। बट लद्दाख को रिलेटेड यहाँ पे हमें एक तो सिक्स शेड्यूल समझना है और दूसरा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एमपी बन के आए हैं और उन्होंने ये डिमांड की है दैट लद्दाख शुड बी गवर्नड बाय लद्दाखीज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लद्दाख एज अ टेरिटरी फॉर इंडिया? फर्दर, द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर आर ऑन द डिस्कशन। इसके साथ साथ देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एड कि पूरे साल में पूरे स्टेट्स ने ओनली 90,000 रुपीज दिया है इन टर्म्स ऑफ मनरेगा एड, अनएम्प्लॉयमेंट एड। और अनएम्प्लॉयमेंट एड क्या होती है ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ देर इज ग्रोइंग डिस्टेबिलिटी इन द यूरेशियन रीजन, पर्टिकुलरली गजा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेबनान में क्राइसिस हो रहा है बिकॉज रिसेंटली वहाँ पे जो हिजबुल्ला है उसके चीफ को मारा गया। इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में भी राइट्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो not only this, there is Indian prediction also that World War III is starting today. So ठीक है, we will see all of that, but on the lighter note, that was a joke. This question was asked by UPSC in its prelims paper 2024। और prelims paper 2024 में क्या पूछा था UPSC ने, that आप देखो, see there is a particular pattern in UPSC questions and I do teach that pattern in my classes separately when we discuss the UPSC prelims papers. Now what is this debate and what is this all of it about? First, the syndicated lending spreads the risk of borrowers default across multiple lenders. So what is syndicated lending? Okay. First thing is that it does spread the risk of borrowers default across multiple lenders. One thing is this that इससे risk of borrower का जो default है कि borrower पैसा वापस नहीं देगा, जो आप पैसा दे रहे हो उसको लोन दे रहे हो वो वापस नहीं देगा। It spreads the risk। ठीक है, सिंडिकेटेड लेंडिंग से उससे क्या होता है, रिस्क स्प्रेड हो रहा है। अब मैं मानता हूं कि आपने ये सिंडिकेटेड लेंडिंग नहीं पढ़ा है कभी और आपको नहीं समझ आ रहा है ये क्या है। ठीक है, just leave this statement aside, but next statement says that the syndicated loan
कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट, अ लंप सम अमाउंट ऑफ फंड्स, बट इट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। ठीक है, remember this pattern once and forever, that whenever there is this statement in between, जब भी किसी स्टेटमेंट में आपके ऐसा आता है, क्या आता है, that A can do this but cannot do this, ठीक है, B can do this and this can happen and this cannot happen, this is allowed and this is not allowed, this is allowed but this is not allowed। ठीक है, ये जो पैटर्न है हर एक स्टेटमेंट में, जितने भी आज तक यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाए हैं, अगर आप देखो तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। वंस स्टेटमेंट टू गोज रॉन्ग, इट मीन्स स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक होगा, रेस्ट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये भी चला गया। इफ स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, सो इट कैन नॉट बी एन एक्सप्लेनेशन। इफ इट्स इनकरेक्ट, it cannot be an explanation anymore. So 1 and 2 by nature, by default goes wrong. The answer was simple, that is C। ठीक है, अब आपको सिंडिकेटेड लोन पता हो या ना पता हो, दैट हार्डली मैटर्स। आई एम टेलिंग यू, ये सिंडिकेटेड लोन के बजाय ये कुछ भी लिखता है यहाँ पे। ठीक है, दैट ए बी सी कैन बी अ सम और कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट, बट इट कैन नॉट बी दिस क्रेडिट लाइन। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू डब्ल्यू, कुछ भी लिख दे यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस पैटर्न इन यूपीएससी इज ऑलवेज रॉन्ग। रिमेंबर दिस थिंग once and for all. Now this syndicated funding was in news, and syndicated funding होती क्या है? जून के महीने में एक न्यूज आर्टिकल आया था 3 जून 2024 को, और 16 जून 2024 को ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मात्र 13 दिन का फर्क है, 13 days। ठीक है, वन थिंग, यही क्वेश्चन था श्रीराम फाइनेंसेस। सेकंड वाज, दिस स्टेटमेंट वाज अर्लियर आल्सो इन न्यूज। ठीक है, कि एसबीआई ने $1 बिलियन का सिंडिकेटेड सोशल लोन इशू किया था फरवरी 2023 में। दैट इज वे बैक, ये 1 साल पहले की बात है ना, 1 डेढ़ साल पहले की बात है, 1 year and 4 months। अब आप सोच लो कि दो न्यूज आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में, 1 साल पहले और एक 13 दिन पहले, which could have been most probable influencer for this question in your exam। तो 13 दिन पहले का न्यूज आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है। उन सब लोगों का नहीं सुनना है जो आपको बोलते हैं कि 2 महीना पहले या 1 महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ना छोड़ दो। दैट इज फॉर दैट मैटर ऑल्सो, वो भी नहीं करना है। What is syndicated funding? Syndicated loan, it's a form of financing that is offered by a group of lenders। 5-6 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला कि हम सब लोग साथ में मिलके लोन दे देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स टू मच ऑफ अ लार्ज लोन, और ये लोन पूरा एक सिंगल लेंडर नहीं दे सकता। ठीक है, अगर ये अकेला लेंडर नहीं दे सकता तो क्या करना पड़ेगा? 5-6 लेंडर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, वो सब लोग पैसा देंगे और एक पर्सन को पैसा देंगे कि ये लो तुम्हारा लोन, ये सिंडिकेटेड लोन है, ये कलेक्टिव लोन है तुम्हारे पास। इट इन्वॉल्व्स लार्ज सम, देयरफॉर इट स्प्रेड्स द रिस्क आउट अमंग सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी लोगों ने साथ में मिलकर लोन दिया होगा, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होके उनने लोन दिया होगा, और उन्होंने ही, उन सब पे रिस्क आएगा अगर इस बंदे ने लोन का अमाउंट वापस पे नहीं किया तो। ठीक है, क्लियर यहां तक? लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द डिस्कशन स्टार्ट्स विथ वक्फ, एंड दो न्यूज आर्टिकल्स है यहाँ पे। एक तो बीजेपी के लीडर है मुख्तार अब्बास अकवी, ये मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने बोला है दैट वक्फ मस्ट कम आउट ऑफ इट्स टच मी नॉट सिंड्रोम। ठीक है, कि वक्फ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वक्फ की गवर्नेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज ही इज हाईलाइटिंग हेयर अ क्रिटिकल इशू, कि अगर आप यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं लेके आओगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं लेके आओगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मुस्लिम्स की। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना जरूरी है। दैट इज व्हाट वी डू इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो रही है, बिकॉज देर इज समथिंग विच इज अंडर द लॉ, विच इज अंडर द व्हील, विच इज नॉट येट ओपन।
तो इसीलिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, सीनियर बीजेपी लीडर बोल रहे हैं, आई गेस he was earlier a member of parliament, he was earlier in the minority affairs, former minister to minority affairs, but he is not currently. तो ही सिंह कि जो वक्फ बोर्ड्स हैं इनके लॉज को अमेंड करना चाहिए। नेक्स्ट, ओवैसी जो हैदराबाद से एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी, वो बोल रहे हैं दैट देर आर चांसेस एंड देर आर दीज एप्रहेंशंस लूमिंग अप कि वक्फ एक्ट को अमेंड किया जाएगा। ठीक है, और इसको अगर अमेंड किया गया तो ये इसलिए अमेंड किया जाएगा ताकि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को ग्रैब किया जाए, हड़प लिया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़प लिया जाए। नाउ दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम टू पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ टू अपोजिट पार्टीज। ठीक है, वन इज इन अपोजिशन, वन इज इन मेन स्ट्रीम, बट लेट्स नॉट डवेल डीप इनटू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर वक्फ्स। ठीक है, व्हाट इज वक्फ? वक्फ वर्ड का मतलब होता है दैट अ मूवेबल और इमूवेबल property which is given in the name of God by a person, mostly the person who is professing Islam। ठीक है, ही गिव्स आउट, और वो चैरिटी के तौर पे, डोनेशन के तौर पे ये अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, किसके लिए? ऊपर वाले के लिए। अब वो जो चैरिटी वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जाता है, उसके लिए वक्फ बोर्ड बनता है, या उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनता है। अब वो वक्फ बोर्ड क्या करता है? ठीक है, ये जो चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, इस वक्फ बोर्ड का काम क्या है, या ये जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज होती है ये इंडिया में अभी कितनी है? अगर आप देखो तो ऐसी प्रॉपर्टीज इंडिया में मैनेज होती है अंडर दी वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड करंटली देर आर 8.5 मिलियन प्रॉपर्टीज, ठीक है, अंडर द सिस्टम। दीज आर फार्म्स विच आर लोकेटेड ऑन लैंड। कुछ फार्म्स है इसमें जो अराउंड अराउंड 8 मिलियन हेक्टेयर्स के फार्म्स ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर आर्मी एंड रेलवेज ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर वर्क इज अ पार्ट ऑफ आर्मी एंड रेलवेज ऑल्सो। हाउएवर द वर्क, द लैंड विच इज डोनेटेड ओवर हेयर, ये जितना भी ये लैंड है, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए इंडिया में वी हैव वक्फ एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, 1995, ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज बेसिकली पास्ड अंडर द लैंड सर्वे कमिश्नर। ठीक है, हु लिस्ट्स डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर डिक्लेयर्ड एज वक्फ थ्रू लोकल सर्वेज। वंस दिस हैपन्स, और उसके बाद ये जो ये प्रॉपर्टीज सारी होती है, इनका एक ट्रस्टी बन जाता है। ठीक है, और उस ट्रस्टी को हम क्या बोलते हैं? मुतवाली। ठीक है, वक्फ is managed by this person known as Mutwali, who is a trustee of this trust। सिमिलरली जैसा हमारा ट्रस्ट बनता है इंडियन एक्ट 1882 के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, वैसे ही जो वक्फ, यहाँ पे वक्फ बोर्ड बनता है, वो इन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करता है। वो इन प्रॉपर्टीज पे जितना भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा इन प्रॉपर्टीज पे, वो सारा कुछ करता है। और ये जो बंदा इनका ट्रस्टी होता है इन प्रॉपर्टीज का, उसको हम बोलते हैं मुतवाली। ठीक है, अब जो ये ट्रस्टीशिप है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस एक्ट के अंदर इन सब प्रॉपर्टीज का, ये देखता कौन है? इसके लिए बनता है वक्फ बोर्ड। ठीक है, और ये वक्फ बोर्ड में कौन कौन से बंदे होते हैं? ये वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है जो इस एक्ट के अंदर बनती है। दिस लीगल एंटिटी हैज राइट्स टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। इसके पास है राइट टू प्रॉपर्टी, एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन। द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस वक्फ बोर्ड इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं वक्फ बोर्ड में?
वक्फ बोर्ड में होते हैं हमारे पास, सबसे पहले इसका प्रेसिडेंट होता है, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट अंडर इट्स ओन प्रेसिडेंट. सेकंड, वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इसके साथ साथ देर आर सम मुस्लिम लेजिस्लेटर्स एंड एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट. दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड एमपीज ऑफ स्टेट, प्लस सम मेंबर्स फ्रॉम बार काउंसिल ऑल्सो. ठीक है. एंड लास्टली देर आर सम मेंबर्स हु आर मुस्लिम थियोलॉजियंस लाइक मौलानाज वगैरह इसमें होते हैं थोड़े बहुत, जिनको यहाँ पे पार्ट लिया जाता है. मुतवली ऑफ वक्फ विद एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख एंड अबव. ये जो मुतवली होता है, ये वो बंदा होना चाहिए जिसकी एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज हो. ठीक है. यहां तक हो गया हमारा वक्फ वक्फ बोर्ड. अब वक्फ बोर्ड में ये भी देखना है दैट देयर इज सेंट्रल वक्फ बोर्ड. सेंट्रल वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ. दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड in 1964 under the Waqf Act of 1954. ठीक है. कॉम्पोजिशन इसका भी वही होता है दैट इसमें चेयरमैन होता है who along with around 20 members administers this property. और ये चेयरमैन और 20 मेंबर्स इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. यहां तक हमने देख लिया वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस एडिटोरियल इज अ बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. यहाँ पे समझने वाली चीज कुछ है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ. और ये आप ना यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज ये आर्टिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट मिस दिस आर्टिकल आउट. ठीक है. इन योर आई विल से एग्जाम्स. तो इसलिए आपको ये समझना होगा दैट ये आर्टिकल मैं इसलिए उठा रहा हूँ और इसका डिस्कशन मैं इसलिए इतना ज्यादा कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक सम नोट्स आउट ऑफ इट. क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आप आंसर राइटिंग करते हो, पर्टिकुलरली ऐसे जब आप लिखते हो. ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे ही लेके जाना चाहता हूँ. ठीक है. If you can understand that this psychology, this psychology of extravagance article which is written by two persons. एक का नाम है फाइजुर रहमान एंड दूसरे का नाम है संतोष मेहरोत्रा. दे स्टार्ट विद द जो शादी अभी तक खत्म नहीं हो रही है. ठीक है. दिस इज बेसिकली अबाउट दैट शादी ओनली, दिस एडिटोरियल. बट there are some key points which we should remember, not going too much into the shadi. ठीक है. The Ambani wedding, not going into that, but yes, we need to understand some of the key concepts here. First is the report which was published by some of the economists like Nitin Kumar Bharti, Lucas Cancel, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांशी. इन्होंने मार्च 2024 में ही एक स्टडी दी थी जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया फ्रॉम 1992 टू 2003. ये लोग इतना स्टडी करके इनने बोला दैट देयर इज राइज ऑफ बिलियनियर राज. दिस इज सम काइंड ऑफ स्टडी. ठीक है. बाय दीज इकोनॉमिस्ट्स. Remember, this is an important point for us to understand. What do we need to understand from it is the inequality scenario in India. They highlight that top 1% of the income and wealth shares were around 22.6% and 40.1% respectively. Like कि टॉप 1% इनकम एंड वेल्थ, जो टॉप 1% लोग थे, अगर आप देखो तो उनके पास 1922 में दे हैड ओनली 22% ऑफ द वेल्थ, बट करंटली दे हैव 40% ऑफ द वेल्थ. ठीक है. 2023 में 22-23 में.
That is how billionaire Raj is explained. Now, going a bit more into detail, ये फैक्ट्स कुछ है यहाँ पे, ये जो याद रखने हैं हमें, ये जो हमें लिख के रखने हैं. One is that top 1% possesses an average of 54 million in wealth, and bottom 50% possesses, the middle 40% holds around 0.717 millions of rupees and 0.96 million of rupees. अंडरस्टैंड इट. ठीक है, कि जो टॉप 1% लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में, इंडिया में, दे हैव अराउंड 54 मिलियन एवरेज उनकी वेल्थ है. 54 मिलियन रुपीज हर एक बंदे की एवरेज में वेल्थ है. जबकि अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप देखो तो उनकी वेल्थ है 0.17 मिलियन. ठीक है, अंडरस्टूड. और जो बॉटम है, ये जो बॉटम लेवल पे है, दैट इज 40%, 50%, दे हैव 0.17 मिलियन, दैट इज अराउंड आई गेस 17,000 रुपीज, and 0.96 million, that is around 96,000 rupees, जो मिडिल इनकम ग्रुप में है और लोअर इनकम ग्रुप में है. ठीक है. दे ऑल्सो हाईलाइट दैट वेल्दिएस्ट 10,000 इंडिविजुअल्स जो इंडिया में है ओन एन एवरेज ऑफ 22.6 बिलियन रुपीज ऑफ वेल्थ. ठीक है, विच इज अराउंड 16 टाइम्स ऑफ द लोअर वंस. ठीक है, 16,000 times of the lower ones. Now understand what is the gap of inequality and how it can be filled. अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने हैं. जैसे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें लिखा गया था दैट 135 मिलियन इंडियंस हैव सक्सेसफुली एस्केप्ड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 2016 टू 2021. यहाँ तक तो नीति आयोग की रिपोर्ट ठीक है, बट इसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, विच वाज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का भी इसमें पार्ट था. तो इन्होंने क्या बोला, दैट अराउंड 56.5% इंडियंस वेर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, विच मीन्स कि अराउंड 790 मिलियन पीपल इंडिया में, 790 मिलियन पीपल, ठीक है, 8 लाख लोग इंडिया में, दे आर नॉट इन अ पोजिशन कि उनके पास 350 रुपए का पैसा हो, वो दिन में अपने आप के लिए खाना खा सके, अच्छा खाना, हेल्दी खाना. 350 रुपए हेल्दी खाने के लिए चाहिए आज की डेट में, और 350 रुपए 8 लाख लोगों के पास नहीं है इंडिया में. अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है कि ये जो शादी हुई है इसमें $600 मिलियन का खर्चा हुआ है, अराउंड 5,000 रुपीज, 5,000 करोड़. ठीक है, विच इफ यू सी इन कॉन्ट्रास्टिंग, अगर यही लोगों का देखा जाए तो ये जो CSR एक्टिविटीज करते हैं पूरा इनका इंडस्ट्रियल ग्रुप, दैट इज ओनली अराउंड 1,200 करोड़. ठीक है, शादी का खर्चा है 5,000 करोड़, CSR का खर्चा है 1,200 करोड़. नाउ the author here highlights some of the key issues by some of the sociologists and some economists. थॉर्स्टीन वेबलन सबने नाम सुना होगा. ठीक है, वेबलन गुड्स आप सबने पढ़े होंगे कि वेबलन गुड्स क्या होते हैं. दे आर दोज गुड्स विच आर मोर सॉट आफ्टर बाय द अपर क्लास. ठीक है, तो वेबलन एक थियरी देते हैं, थियरी का नाम है द थियरी ऑफ लेजर क्लास. वेबलन लिखते हैं दैट द कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इज अ मीन्स ऑफ रेप्यूटेबिलिटी ऑफ द जेंटलमैन ऑफ लेजर. कि जो लोग लेजर के पीछे भागते हैं उनके लिए कंजप्शन ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इज द ओनली वे जिससे वो अपनी रेपुटेशन बना के रखते हैं अपने उस ग्रुप में. तो इसीलिए उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स, जैसे 1-1 करोड़ की वो घड़ी दी गई, एक्सपेंसिव फीस्ट्स, बहुत ही बड़े लेवल पे एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटीज को बुलाना और फीस्ट्स. दिस ऑल इज डिस्कस्ड बाय द वेबलन्स थियरी, द थियरी ऑफ लेजर क्लास. ठीक है, the scale of this extravagance is deliberately kept so large that it enders impossible. ठीक है, और वेबलन इसको क्या बोलते हैं, दैट इट इज एन इनविडियस पेक्यूनियरी कंपैरिजन, कि ये इतना ज्यादा लेवल पे एक्स्ट्रावेगेंस होता है कि इसको फिर बाकी लोग नहीं अचीव कर पाते हैं. दैट इज हाउ द वेल्दी नार्सिसिज्म वर्क्स. इसके बाद there are other theories also given by
the philosopher Michael J. Sandel. This philosopher talks about the mindset that claims the right to wasteful expenditure. कि क्यों ऐसा होता है कि जो ये लोग होते हैं, जो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, उनकी रीजनिंग क्या है इसके पीछे? वो ये क्यों चाहते हैं ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना? ठीक है, पहली चीज, वो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना क्यों चाहते हैं? वो इसके पीछे क्या क्लेम्स देते हैं? वो इसके पीछे क्या बोलते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं? उनके लिए ये रीजनिंग क्या है इसके पीछे? तो ही हाईलाइट्स दिस थिंग दैट सबसे पहले यहाँ पे माइकल जे सैंडल इन हिज बुक सेज दैट देयर इज द टेरेनी ऑफ मेरिट. Michael J. Sandel blames that there is this entitlement mentality. What is entitlement mentality? कि जो ये लोग होते हैं जो रिच होते हैं, दे हैव क्लेम टू एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ देयर वेल्थ. कि उनकी वेल्थ, उनकी दौलत, वो चाहे समंदर में बहा दे, वो चाहे किसी को दान कर दे, वो चाहे शादी में उड़ा दे, वो चाहे जुए में उड़ा दे, उनकी दौलत है, उनकी वेल्थ है तो कर ले. बट ही हाईलाइट्स हियर टू रीच दिस कंक्लूजन सैंडल रिलाइज ऑन टू थिंग्स. सैंडल यहाँ पे क्या बोलता है? बोलता है सबसे पहली चीज है रॉल्स का नेगेटिव आर्ग्यूमेंट. जॉन रॉल्स highlights that no individual can stake a sole claim to success because success depends on fortunate circumstances in the early life for which one cannot claim credit. ये एक थ्योरी है जॉन रॉल्स की. रॉल्स कहते हैं कि देयर इज ए नेगेटिव आर्गुमेंट कि एक इंसान जो सक्सेस अचीव कर लिया, वो सक्सेस बस इसलिए अचीव नहीं किया कि उसकी अपनी मेहनत है, नहीं, उसके साथ साथ फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस भी थी. वो एक अर्ली लाइफ में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उसने अर्ली लाइफ में पहले पहले जो बिजनेस स्टार्ट करना था, जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको हार्नेस करना था, तो वो सब उसने कर लिया. ठीक है, इसके साथ साथ देयर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट गिवन बाय फ्रीडरिच हेयक. हेयक is a political thinker. He says that there is affirmative argument also. One is negative argument, another is affirmative argument. John Rawls के according, the negative argument says that one individual cannot stake a sole claim. कि वो नहीं बोल सकता कि मेरे पास सक्सेस है तो ये बस मेरे लिए है, या बस मेरी वजह से है, या बस मैंने काम किया है इतना ज्यादा इसलिए है. ये नेगेटिव आर्गुमेंट बोलता है. बट फ्रीडरिच हेयक क्या बोलता है? ही सेज अ अफर्मेटिव आर्गुमेंट. अफर्मेटिव आर्गुमेंट टॉक्स अबाउट दैट द सक्सेसफुल आर ऑब्लिगेटेड टू कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी. वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो बस ये समझ ले कि बस हाँ ठीक है हम सक्सेसफुल हो गए तो अब हमारी मर्जी है, हम जो करें वो करें. उनको कम्युनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है. Sandel argues that the refusal to recognize the realities highlighted in these arguments has led rich to believe that their talents entitle them to the bounty that the market bestows upon them. कि ये जो रिच होते हैं, they refuse these two arguments. They do not recognize these two arguments. Neither they recognize negative argument, neither they recognize affirmative argument. इसीलिए उनके अंदर ये चीज आ जाती है कि जो पुअर लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, दे डिजर्व दैट थिंग. व्हाई? बिकॉज दे लैक द मेरिट ऑफ हार्नेसिंग द अपॉर्चुनिटीज, द मेरिट ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, बाय द फॉर्चुनेट. कि इनके पास, इनकी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें, हमारी किस्मत अच्छी थी तो हम अच्छे घर में पैदा हो गए. ठीक है, दैट इज इट. नाउ सैंडल, रॉल्स एंड हेयक, तीनों के हमने आर्ग्यूमेंट्स समझ लिए. दैट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड दिस. नाउ आफ्टर दिस द ऑथर हियर हाइलाइट्स दैट देयर इज अ मिडिल क्लास मैकेनिक इन मुंबई, जिससे पूछा गया शादी के बारे में. तो उसने बोला कि यार देखो, ये जो बंदा है जिसने शादी पे इतना खर्चा किया है, वो इतना पैसा कमा रहा है. अब जब वो कमा रहा है तो उसका ये राइट बनता है कि वो अपने बच्चों पे ये खर्च कर दे. खत्म कहानी. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? बट इसी चीज को लेके द सोशोलॉजिस्ट the sociologist Michelle Lamont speaks of this middle class peculiarity in her book, and she says that there is the dignity of working men. She highlights that अमेरिका में लार्ज स्केल पे वाइट ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं who have little resentment towards those who do well. Why? Because this attitude, she points out, is consistent. Why? Because Americans believe that जो अभी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिवॉर्ड्स में, जो अभी का डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ में, जो वहां की इनइक्वालिटी है, दैट इज फेयर.
वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव कर चुके हैं। दे से दैट अपॉर्चुनिटी तो सबके पास ही है, जो लोग काम करते हैं वो कमाते हैं, जो लोग नहीं काम करते वो नहीं कमाते हैं। दैट इज समथिंग जो उनके अंदर है। सीमिंगली द इनएक्सप्लिकेबल appreciation of the rich by the poor and middle class amounts to a kind of psychological capture of the poor and middle class by the rich, which makes it possible by the unabashed propagation of the myth of meritocracy। ठीक है, कि मेरिटोक्रेसी जो है वो अभी भी चल रही है, मेरिटोक्रेसी जो है वो अभी भी बिल्कुल बायस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये मेरिटोक्रेसी है ये अच्छे से काम कर रही है। नाउ दे हाईलाइट हेयर अ डिस्कशन जो हम अपने एथिक्स या ऐसे के पेपर में आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से यूज कर सकते हैं। डोंट थिंक दैट इट विल बी अ कम्युनल आर्ग्यूमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। दिस कैन बी यूज्ड वेरी वेल। कि देयर वाज अ रेडिकल स्टेटमेंट बाय द मुस्लिम होली बुक कुरान विच सेज दैट जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, द वंस हु आर रिच एंड द वंस हु आर पुअर, ये जो पुअर है, दे हैव राइट, दे हैव क्लेम्स, ये इनका राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगे जो अमीरों के पास है। इट इज नॉट अ चैरिटी, इट इज नॉट अ चैरिटी दैट अमीर लोग डोनेट कर रहे हैं या वो पैसा दे रहे हैं गरीब लोगों को, नहीं, ये चैरिटी नहीं है। ये है क्या असल में, ये इनका राइट है, ये आपको उनको देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज रिच बाय कुरान, by this book, rich are called as trustees, they just have a trusteeship of the wealth। ये वेल्थ उनकी नहीं है, ये वेल्थ का बस ट्रस्टीशिप है उनके पास बस रखा गया है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उनके पास बस डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। ठीक है, तो इसीलिए जो दिस होली बुक, दिस टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि जो ये वेल्थ का ओनरशिप है ना, इसको एक्सपैंड करो। द राइट ऑफ पुअर इज अपॉन द वेल्थ ऑफ रिच, दे कैन हैव इट। ठीक है, एंड रिच आर ओब्लाइज्ड बाय दिस थिंग कि उनको ये देना पड़ेगा पुअर को। तो वन थिंग इज दैट दिस टीचिंग कैन बी प्रोपगेटेड। वन थिंग, दिस इज परहैप्स व्हाट सैंडल मेंट when he concluded his book that the with an aphorism to sober up the meritocratic rich, he says there, but for the grace of God or the accident of birth or the mystery of fate go I। कि जो मेरे पास मेरिट है, जो मेरे पास वेल्थ है, जो मेरे पास रिचनेस है, जो मेरे पास बहुत सारी दौलत है, ये सब इसलिए है बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ दैट आई वाज बोर्न इन अ रिच फैमिली, और बाय द मिस्ट्री ऑफ फेट, कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था, मैं अमीर घर में पैदा हो गया या मैं गरीब घर में पैदा हो गया। दैट इज इट। इट इज नॉट एक्चुअली दैट यू हैव क्लेम्स ओवर ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट एडिटोरियल which we are discussing is about Gaza, and the Gaza which is under another siege, the United Nations। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखनी है that editorial starts with a definition which United Nations Office for Disarmament Affairs has described as biological weapons। The United Nations says that dissemination of disease-causing organisms or toxins to harm or kill humans, animals और plants, ये तीनों चीजें बायोलॉजिकल वेपन्स में कंसिडर की जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स या डिसआर्मामेंट अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ऑफिस है डिसआर्मामेंट के लिए, वो बोलता है कि जो भी ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स रिलीज किए जाए ताकि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स को मारा जाए उन चीजों की वजह से, इन सब चीजों को बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है। नाउ द ऑथर हियर हाइलाइट्स कि यहाँ पे जो सीवेज है लाइंस गाजा में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो गाजा की है, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया जुलाई 29 को दैट गाजा में एपिडेमिक हो गया है ऑफ व्हाट, पोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले, पोलियो एक ऐसा वायरस है जो बस ह्यूमन बॉडी में रहता है। ठीक है, सेकंड,
आपको ये देखना है दैट पोलियो जो है ये वायरस, दो चीज, एक तो ह्यूमन बॉडी में रहता है, मतलब क्योंकि वो वायरस है तो इसको एक होस्ट चाहिए ही जिंदा रहने के लिए, ये हवा में नहीं रह सकता। दूसरा, पोलियो जो है ये वाटर बॉर्न भी है, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर में अगर पोलियो वायरस हो तो वो आपको लग सकता है और आप इन्फेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं, इस एडिटोरियल में क्या किया गया है, क्या डिस्कस किया गया है। सबसे पहले ये बोल रहा है द ऑथर की हाइलाइट्स कि चूंकि अभी रिसेंटली जो 2 दिन पहले का हमला हुआ है, जो स्कूल और हॉस्पिटल ब्लॉक खत्म हुआ है, इसके साथ साथ इन टोटल जितना भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा का वो खत्म हो चुका है अब, ठीक है। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इज ब्रेकिंग डाउन क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। He says only one third of Gaza's 36 hospitals are still functioning. मतलब जहां पे 36 हॉस्पिटल्स थे वहां पे अब बस 12 हॉस्पिटल है बस। सेकेंड, ही सेज दैट polio virus is an obligate human pathogen, meaning it can replicate itself only inside a cell of the human body, which means कि अगर यहाँ पे गाजा में आपको मिला है सीवेज वाटर में वायरस, इट मींस ये ऑलरेडी रेप्लिकेट कर रहा है, ये ऑलरेडी फैल चुका है। तो अब आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए और देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि गाजा और इसराइल के बेबीज को कैसे बचाया जा सकता है वायरस से। अदरवाइज दिस शुड बी टर्म्ड एज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ यूपी एंड इस एडिटोरियल में हमें यह समझना है दैट यूपी गवर्नमेंट एक एंटी कन्वर्जन लॉ पे अमेंडमेंट लेके आती है। एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी ने 2021 में लेके आया था, ठीक है। 2021 का ये लॉ है और 2024 में अभी इसमें अमेंडमेंट आया है। अभी ये अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? अमेंडमेंट इज प्रपोजिंग दैट द एक्ट, दिस अमेंडमेंट एक्ट सेज कि अगर कोई भी इंसान जिसको अक्यूज किया गया कि ये एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज में प्रमोट कर रहा है, एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज को ये कन्वर्जन करा रहा है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे। सबसे पहले तो राइट टू कन्वर्जन हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, राइट टू प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है, नॉट राइट टू कन्वर्जन, ठीक है। फोर्सफुल कन्वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक, वो तो एक क्राइम है, फोर्सफुल कन्वर्जन इज अ क्राइम। नाउ दिस बिल सेज कि अगर किसी भी इंसान को पुलिस ने चार्ज कर लिया विद दिस प्रोविजन कि ये एंटी कन्वर्जन या कन्वर्जन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा था, फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहा था, वंस ही इज अंडर द अरेस्ट, ही इज प्लेस्ड बिहाइंड बिफोर अ कोर्ट, इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया, अब इसको बेल नहीं मिल सकती तब तक जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose it, कि इसकी बेल को अपोजिशन हो, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसकी बेल को अपोज करे कहां पे? कोर्ट में। एंड दैट देयर शुड बी रीजन टू बिलीव दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, एंड इज अनलाइकली टू रिपील इट आउट ऑफ द बेल। तो यहाँ पे थोड़े से प्रोविजंस स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, बस इतना हमें समझना है कि ये एडिटोरियल में क्यों आया था, ये न्यूज में क्यों आया था, एंटी कन्वर्जन लॉ पे अमेंडमेंट आया हुआ है, बस इतना समझना है, ठीक है। दैट इज एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी में देर आर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, और प्रोविजन ये भी है दैट 20 years का इम्प्रिजनमेंट होगा और लाइफ सेंटेंस होगा इफ इट वाज फाउंड दैट द कन्वर्जन हैड टेकन प्लेस अंडर थ्रेट और प्रॉमिस ऑफ मैरिज और कॉन्स्पिरेसी। अगर ये 3 रीजंस में से कोई रीजन पता चला तो 20 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस बंदे को। द बिल ऑल्सो अलाउज एक बंदा टू रजिस्टर एन FIR इन केस रिलेटेड टू द रिलीजियस कन्वर्जन। इवन कोई भी यहाँ पे FIR कर सकता है, कोई भी यहाँ पे FIR कर सकता है। इट्स नॉट ओनली कि जो विक्टिम है या जो दो लोग इन्वॉल्व है इन दी कन्वर्जन, ये ऐसा नहीं है कि बस उसके घर वाले ही करें, ये ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। द केस वुड नॉट बी हर्ड बाय अ कोर्ट बिलो सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से नीचे कोई भी कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। बिल ऑल्सो मेड द क्राइम नॉन बेलेबल,
ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एफआईआर जाएगी ये सेशन कोर्ट से ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। तीसरा, एनीवन विशिंग टू कन्वर्ट ऑफ देयर ओन वायलेशन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2 months इन एडवांस। ठीक है, कि अगर किसी भी इंसान को शादी करनी है, लाइक दो रिलीजन से बिलोंगिंग दो पर्सन्स को आपस में शादी करनी है, एंड फॉर दिस मैरिज दे इंटेंड टू कन्वर्ट फ्रॉम देयर रिलीजन टू द अदर रिलीजन। ठीक है, अगर वो कन्वर्जन चाहते हैं तो इस केस में उनको 2 महीना पहले ही एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि मुझे कन्वर्ट करना है अपना रिलीजन, और 2 महीने के बाद मेरी शादी है। ठीक है, 2 महीने पहले इनको डिसाइड करना होगा। एंटी कन्वर्जन लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस। यूपी ऐसा पहला स्टेट नहीं है। ओडिशा में 1967 में ओडिशा became the first state to enact a law restricting the religious conversions। ठीक है, तो ओडिशा was the first state to do such law। Next, it was Madhya Pradesh MP in 1968 which passed the धर्म स्वतंत्रया अधिनियम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, इट वाज इन 1968 जब उनने लॉ पास किया। उसके बाद अरुणाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी एंड उत्तराखंड एंड हरियाणा ऑल्सो पास सच लॉज। मल्टीपल इंस्टांसेस हो गए हैं इस चीज के। दे ऑल रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 25 कि आर्टिकल 25 के अंदर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द current government, that is Modi 3.0, and the previous governments, the budget allocations in the previous government and previous terms, and budget allocation in current government. It says that in the previous 2 terms, Modi government launched of some major national advanced technology missions were there, like supercomputing mission हमारे पास आ गया था, cyber physical systems आ गए थे हमारे पास, national quantum mission आ गया था हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स थे विद दी मोदी गवर्नमेंट। बट इन इट्स लास्ट टाइम, अभी जब इंटरिम बजट आया था तो उस टाइम पे भी ये प्रपोजल आया था दैट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। और उसमें होगा क्या कि अगर कोई इंसान इनोवेशन कर रहा है, वो कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, कोई नई इन्वेंशन कर रहा है, तो उसको प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1 लाख करोड़ का हमने एक कॉर्पस बनवाया था कि यहाँ से उसको फंडिंग हो जाएगी, ताकि ये बेसिक रिसर्च और बेसिक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इजी हो जाए इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन द करंट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सबको याद रखना है और अपने आंसर्स में लिखना है। क्या क्या प्रोविजंस है? सबसे पहले विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, ये जो गोल है, दिस इन टर्न emphasizes on research and development in key areas like climate resilience, agriculture, critical minerals, nuclear energy and energy efficient technologies। इसके साथ साथ 10% इंक्रीज हुआ है द बजट एलोकेशन जो पर्टिकुलरली सीएसआर को मिलता है, सीएसआईआर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इसको जो बजट मिलता है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ताकि साइंटिफिक एडवांसमेंट हो पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो पाए, किस संदर्भ में? एग्रीकल्चर के एरिया में। इसके साथ साथ दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF फॉर द बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ANRF को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज विद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, स्पीड ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे फॉर क्रॉप डेवलपमेंट। स्टार्टअप्स जो बायोटेक्नोलॉजी में होंगे, ऑल टुगेदर एंजल टैक्स तो अबॉलिश कर ही दिया गया है। अब जो स्टार्टअप्स बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे उनके लिए भी ये एडेड इंसेंटिव होगा कि वो बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करें अपना इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ द अनाउंसमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अनाउंस्ड। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए थे। सम क्रिटिसिज्म अबाउट दिस एडिटोरियल ओनली कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर दिया गया। जो पहले एलोकेट किया गया था एक्सपेंडिचर इन 2023-2024 बजट लास्ट ईयर,
जो एलोकेशन था और जो एक्सपेंडिचर हुआ, एलोकेशन से एक्सपेंडिचर कम था, बहुत कम, और जिसकी वजह से फिर होता ये है कि एलोकेशन तो हो गया बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं होगा तब तक कोई रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशंस व्हिच इज नॉमिनल, लेस देन 10% इंक्रीज इन द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द ओवरऑल बजट एलोकेशंस, कि जो टोटल बजट एलोकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, उसमें उतना ज्यादा भी इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत कम इंक्रीमेंट है, विच इज इंटेंडेड कि जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से ही खत्म हो जाएगा, तो कोई फायदा हुआ नहीं इंक्रीमेंट का। देर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिसर्च फंडिंग, रिसर्च फंडिंग को लेके इंक्रीमेंट नहीं हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीरो बजटिंग सिस्टम जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एक बर्डन क्रिएट कर रहा है रिसर्चर्स के ऊपर। कैसे? बिकॉज जीरो बजटिंग में हम करते क्या है कि पिछले साल अगर किसी साइंटिफिक कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास, कोई इंस्टीट्यूट है, उनने कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट ले लिया, उसके लिए उनने पैसे ले लिए, अब जीरो बजटिंग में क्या होगा, अगले साल उस चीज पे एनालिसिस होगा पहले कि हमने इस पे कितना काम किया, अभी तक कितना हुआ है, जो नई पॉलिसी होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है। देर इज इनएडिकेट एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, ठीक है, जो कि कम है बिकॉज दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स को बनाना, दिस इज इंटर्न इन इट्स ओन अ कैपिटल इंटेंसिव नेचर, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई भी इनोवेशन करना होगा, नया प्रोडक्ट बनाना होगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और कैपिटल उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और फिर उसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत साल तक चलते हैं, इसीलिए 20 साल का हमारे पास आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि अगर कोई कंपनी है जो काम कर रही है, जिनने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया है, तो वो लोग तब तक इस चीज का आईपीआर ले सकते हैं जब तक 20 साल ना हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको जितना पैसा लगा है ना उस चीज को डेवलप करने में, वो वापस रिकवर करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है। दीज आर सच थिंग्स। नेक्स्ट, दिस एडिटोरियल अबाउट द सिक्स्थ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बस सिक्स शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। सिक्स शेड्यूल क्या है और लद्दाख इसके बारे में क्यों डिमांड करता है, समथिंग विच वी विल डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सिक्स शेड्यूल? तो आर्टिकल 244 of Indian Constitution talks about the sixth schedule. It says the sixth schedule under Article 244 provides, क्या करता है प्रोवाइड? सबसे पहले कि हम यहाँ पे बना सकते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है। ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगे, ये कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स में। ठीक है। ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जितने भी होंगे वहां पे बनेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं? दे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जुडिशियल पावर्स इसके पास होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसके पास होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अगर आप अभी देखो तो सिक्स्थ शेड्यूल में हमारे पास जो स्टेट्स हैं ऑलरेडी, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, चारों के चारों। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। ये चार स्टेट्स हैं हमारे पास सिक्स शेड्यूल के अंदर। मेघालय हमने कब जो ये मेघालय स्टेट है, अगर आप यहाँ पे देखो सिक्स शेड्यूल के बाहर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय में वी हैव खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, ऑटोनॉमस खासी, द खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे पास है। इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे जयंता हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड गारो हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव मिजोरम, जहां पे द टू ट्राइब्स चकमा, इनका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है।
लाई, इनका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एंड मारा, इनका भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखनी है। त्रिपुरा में यह त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, असम में वी हैव दीमा हसाओ एरिया, वी हैव कार्बी आंगलोंग एरिया और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, एंड लास्ट में वी हैव बोडोलैंड ऑटोनॉमस और टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनके पास पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, तीनों इनके पास होते हैं। नाउ लद्दाख, जो कि इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग इतना बड़ा एरिया है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हाई शुड लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल? सबसे पहले यहाँ पे देर आर सम लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स says, or if you say why Ladakh should be included into the list, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला, इट विल एंश्योर दी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उस चीज को लेके नाउ लद्दाख विच वाज अर्स्टवाइल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख डिमांड्स दैट देयर शुड बी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल which should be an elected body and that should govern the region, enjoyed significant autonomy। इससे पहले ये था, ठीक है, जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो उस टाइम पे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल था, जिसके पास ऑटोनॉमी थी, और वो डिस्ट्रिक्ट को और वो अपने एरिया को आराम से रेगुलेट कर रहे थे, इलेक्टेड बॉडी थी ये। बट द रीजन विच इज नाउ अंडर करंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल टर्म्स दैट लद्दाखी लीडर जो है, ये बोल रहे हैं कि ये जो ये हमारे पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, इट हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू द पॉलिटिकल फुटनोट्स। अब यहाँ पे इसका कोई काम बचा नहीं है, और ये जो काउंसिल है, इसको ऐसी पोजीशन में रखा गया है कि इसके पास कोई पावर नहीं है अब। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि अब हमें सिक्स शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, लद्दाख की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लद्दाख की इंपॉर्टेंस अगर आप देखो, तो हमारे दोनों पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशन जहां पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी, और जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल बॉर्डर भी है, ठीक है, अराउंड दिस लाइन, गलवान लाइन, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी है, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स भी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा कंट्रोवर्शियल एरिया भी है। तो ये इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। बट आफ्टर 370 एंड 335A का एब्रिगेशन, यहाँ पे हुआ क्या है, देर इज डिक्रीज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में अब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो लद्दाख है, लद्दाख में एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और रिसेंटली लद्दाख की लैंड को कंसिडर किया गया दैट इट इज इक्विवेलेंट टू मार्स का जो लैंड है वैसा। और जो हमारा मिशन जा रहा है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, दैट मिशन का जो टेस्टिंग साइट है वो लद्दाख को बनाया गया। ठीक है, अब अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ अ फ्राइजाइल इकोसिस्टम इट हैज। ठीक है, तो ये भी समझना है। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हाई है, डेजर्ट है, ग्लेशियर्स भी है, एल्पाइन मीडोज भी है, और ये हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। दिक्कत यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, माइनिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, जितने भी यहाँ पे डार्क रिजर्व्स बनाए गए हैं, इन सब चीजों को लेके यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अदरवाइज होगा क्या, हम लोकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होगा। तीसरा मैंने बोला सेंसिटिव बॉर्डर्स है, तो लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ का टेरेन समझने के लिए लोकल कम्युनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल्चरल आइडेंटिटी जो लद्दाख है, इसकी कल्चरल आइडेंटिटी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द एंटायर इंडिया, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ लद्दाख बीइंग इनटू द सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सिक्स शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू जस्ट कीप अ व्यू, एक थोड़ा बहुत अपडेट आप ले लो इस न्यूज़ पे, बस उतना ही, ज्यादा उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अभी कुछ टाइम पहले दैट 30 सितंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दिया गया था कि 30 सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पे इलेक्शंस करा लो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बट यहाँ पे अप्रीहेंशंस ये हो रहे हैं कि लद्दाख, ये जो पुंछ और जम्मू वाला एरिया है, पर्टिकुलरली जो कुपवाड़ा वाला एरिया है, नॉर्थ कश्मीर, इस एरिया में देर इज इंक्रीज ऑफ इनफिल्ट्रेशन। और रिसेंटली हमने देखा था, हमारी चैनल पे ये वो वीडियो है जिसमें देर वाज अ क्लेम कि यहाँ पे 600 पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस या स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के फोर्सेस, जो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, आर्मी का ग्रुप, वहाँ के जो कमांडोज हैं वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और वहीं यहाँ पे जो है एक रहमानी है उनका एक लीडर जो मुजफ्फराबाद से ऑपरेट कर रहा है, और उनका एक दूसरा लेफ्टिनेंट है जो जम्मू में ऑपरेट कर रहा है। और ये सारे ग्रुप्स जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी छोटी छोटी टोलियां बना के हमले कर रहे हैं। दिस इज अ क्लेम बाय एक्स कॉप मिस्टर एसपी वैद सर, जिनने यहाँ पे क्लेम किया था दैट उनके अपने नेटवर्क के हिसाब से, उनके अपने अनऑफिशियल, जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड डीजीपी है, उनके अपने नेटवर्क के हिसाब से दैट देर आर दिस मच ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी इन दिस एरिया। तो इसी चीज की अप्रहेंशन लेते हुए, इसी चीज को सोचते हुए, नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे शायद इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा फर्दर। बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज अबाउट मनरेगा। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है, ये एडिटोरियल इसलिए आया है कि इकोनॉमिक सर्वे जो अभी टेबल हुई थी पार्लियामेंट में, जो हमने डिस्कशन भी किया इकोनॉमिक सर्वे का, कि टोटल मनरेगा में, अगर आपको पता हो, मनरेगा में अगर आपको 15 दिन का काम नहीं मिला, 15 दिन तक काम नहीं मिला, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर, शॉक करने वाली फिगर ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, सब स्टेट्स ने जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है, टोटल मिला के वो 90,000 रुपए का है। ठीक है, 90,000 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इशू किया है मनरेगा में पिछले एक साल में। अब आप खुद सोचो, 6 स्टेट्स ने ही दिया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सबसे पहली चीज, कितने लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड है? दूसरा, क्या मनरेगा सच में इतना काम कर रहा है कि बस 90,000 की जरूरत पड़ी? ठीक है, तो दीज आर इश्यूज जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है 1 पॉइंट, और बस इतना ही हमें याद रखना है, बाकी जो डिस्कशन है वो उतना इंपॉर्टेंट का नहीं है। मनरेगा के कुछ फीचर्स: 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको। दिस स्ट्रेंथन्स द पंचायती राज सिस्टम। 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन मनरेगा। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। द डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है अगर काम ना मिले 15 दिन तक। आपको जो काम मिलेगा वो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मिलेगा, उससे बाहर आपको काम लेने नहीं जाना होगा। वेज जेंडर पैरिटी, जितना पैसा लाइवलीहुड या जितना जो आप बोलते हो कि दिन का पैसा, लेबर का पैसा, वेज, जितना मेन को मिलेगा उतना ही वुमेन को भी मिलेगा। एंड मिनिमम आपको 15 दिन का काम, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा आपका मिल जाएगा। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो आपको मनरेगा से रिलेटेड याद रखने हैं। क्यों याद रखने? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं मनरेगा के ऊपर। ठीक है, और मेंस में भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप अ अपडेट ऑन सम इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स। रिसेंटली गाजा में एक और हमला हुआ है जहां पे 44 वेर किल्ड। इसके साथ साथ हमस के चीफ हनिया, इनको भी मार दिया गया, और हिजबुल्ला के एक चीफ थे
जिनको लेबनान में मार दिया गया। ठीक है, तो हानिया को भी मारा, जिसको ईरान में मार दिया गया था, और लेबनान के जो हिजबुल्लाह के चीफ थे उसको भी मार दिया गया इन एन अटैक ऑन द सेम ट्यूसडे नाइट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले का ही हुआ था। अब दिक्कत ये हो रहा है कि गाजा में भी अटैक्स बढ़ गए इसराइल की तरफ से, और लेबनान में भी अटैक्स बढ़ गए इसराइल की तरफ से, और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, यूक्रेन में भी अटैक हो गया, किसका? रशिया का। ठीक है, दोनेत्स्क का, दोनेत्स्क टाउन जो है रशिया में, वहां पे हमला हुआ है। ये तीन चीजें हो गई, तीन न्यूज हो गई जो डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं। चौथी न्यूज ये है कि यूनाइटेड किंगडम में देयर इज एन इंसिडेंट जो अभी 2 दिन पहले हुआ है। ठीक है, एक डांस पार्टी चल रही थी। ठीक है, विच वॉज अ टेलर स्विफ्ट थीम्ड डांस पार्टी। अब यहाँ पे डांस पार्टी हो रही थी, यहाँ पे एक बंदा आता है, वो क्या करता है, वो चाकू निकालता है और वो तीन लड़कियों को, एक तो 10 लोग तो यहाँ पे जो है उनको बहुत ही बुरी तरीके से इंजरी हुई है, बहुत ही बुरे वो इंजर हो गए हैं, और तीन लड़कियां यहाँ पे मर गई। ठीक है, द नंबर रेज्ड टू 6 लेटर, 6 लोगों को उसने मार दिया। नाम क्या था बंदे का? बंदे का नाम था रूडा क्यूबेना। ठीक है, रूडा क्यूबेना, यहाँ पे एक बंदा था जो यहाँ पे एक पार्टी में चला गया और उसने कम से कम 6 लोगों को मार दिया और 10 को इंजरी कर दी। अब दिक्कत ये है, ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे जो राइट विंग लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और इतना हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हो गया है दैट 13 साल में सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट है बाय फार राइट एजिटेटर्स। बेसिकली इसका बैकग्राउंड कहाँ पे है? बैकग्राउंड ये है कि कियर स्टारमर की गवर्नमेंट आई है जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अब ये जो राइट्स है, अब ये क्या होता है इसमें आगे, वो आगे देखा जाएगा। 100 पीपल को यहाँ पे ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ जगह जो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, अपने मैप पे लोकेट करनी है। मैं यूजुअली मैप्स आपको दिखाता नहीं हूँ उतने ज्यादा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ही इन जगहों को लोकेट करके अपने मैप पे लोकेट करें। दिस इज इजराइल, ये जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, दिस इज इजराइल द प्रेजेंट पोजिशन। दिस इज गोलन हाइट्स, जो टेरिटरी है बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। दिस इज लेबनन, लेबनन ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद सीरिया एंड इजराइल। लेबनन पे ही अटैक्स हुए हैं अभी, जहां पे हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए। नेक्स्ट, देर इज वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन एंड गाजा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। वेस्ट बैंक में अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, और गाजा में अलग गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमस, जो यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जो यहाँ का अभी रूल संभाल रही है, जिसके वन ऑफ द चीफ वाज दी हानिया और हनीये। नेक्स्ट, वेस्ट बैंक में देर इज फतह, दी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे गवर्नमेंट संभाल रही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये चीज। ये हो गया हमारा बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इसराइल। ठीक है, तो कौन कौन सी है? नॉर्दर्न साइड में हमारे पास लेबनन है, यहाँ पे हमारे पास सीरिया है, इधर जॉर्डन भी बॉर्डर शेयर करता है, और इधर इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है, एंड फ्रॉम दिस साइड देर इज सऊदी अरेबिया, बट सऊदी अरेबिया इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर डायरेक्टली विद इसराइल। हाँ, गल्फ ऑफ अकाबा में देर इज दिस बॉर्डर विच कैन बी शेयर्ड। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट, कुछ एरियाज जो हमें याद रखने हैं। जपोरिजिया 2023 के पेपर में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, खारकीव 2023 के पेपर में ही यूपीएससी ने पूछा था। कीव एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपको याद रखनी है। मरियोपोल एक पोर्ट है जो आपको याद रखना है, और अपने नोट्स में याद रखना है, नोट्स में लिख के रखना है। ओडेसा पोर्ट है यूक्रेन का, ये भी याद रखना है। यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद रखनी है, रोमेनिया, मोल्डोवा, ठीक है, रशिया, इसके साथ साथ बेलारूस इधर है, पोलैंड पोलैंड इधर है। बाकी जितने भी कंट्रीज है, यू कैन रिमेंबर देम बाय बर्गर टी इज द एक्रोनियम विच यू कैन यूज। तो यूनाइटेड किंगडम में हाई लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं बाय दी राइटिस्ट ग्रुप्स। Lastly, there is this editorial, and I want you to understand this editorial very well.
और यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है वो बस छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि वायनाड में जो क्लाइमेटिक क्राइसिस हुई है, ठीक है, इसका रीजन एक यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। वो रीजन हमें याद रखना है बस, और वो रीजन हमें अपने आंसर्स में काम आ जाएगा। रीजन क्या है कि देखो, जब ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप वेदर के पैरामीटर्स को चेक कर रहे होते हो या क्लाइमेट के पैटर्न को आप देख रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, तो आप एक चीज यहाँ पे मिस आउट कर देते हो। दैट इज लोकल लेवल पे क्या फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि जियोग्राफिकल फिनोमेना बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल जियोग्राफिकल फिनोमेना, दे आर यूजुअली इग्नोर्ड। और उसकी वजह से होता क्या है कि हम नेशनल लेवल की वार्निंग्स को अंडरस्टैंड करते करते लोकल लेवल की वार्निंग को छोड़ देते हैं। एंड उससे होता क्या है कि एक बहुत ही छोटे एरिया में इतनी बड़ी तबाही या इतना बड़ा डिजास्टर आ जाता है कि हम उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे जो छोटे लेवल पे लैंड यूज पैटर्न है और जो छोटे लेवल पे क्लाउड बर्स्ट होते हैं या लोकल लेवल पे जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, उनको हमें डिटेक्ट करना है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वायनाड में एक्चुअल में हुआ क्या। वायनाड 80 किलोमीटर दूर है कहाँ से, कोस्ट से। एंड कोस्ट से जब विंड्स आ रही होती है, ठीक है, और कोस्ट से जब विंड आ रही होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा समंदर है, ओशियन, ये हमारा कोस्ट है, कोस्टल एरिया, और यहाँ पे है वायनाड। और ये जो एरिया है 80 किलोमीटर का एरिया, जब यहाँ से विंड आ रही होती है तो वो इस एरिया के वार्म एयर को इस जगह पे एक्यूमुलेट करती है, और यहाँ पे होती है लोकल लेवल की वार्मिंग, ठीक है, जो बहुत ही स्पेसिफिक एक छोटे से एरिया में हो रही है। और उस वार्मिंग, वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, और उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन भी होता है, और देन यहाँ पे जो है सडन आउटबर्स्ट या सडन क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वंस दिस क्लाउड बर्स्ट हैपेंड, उसी की वजह से वायनाड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई अभी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल इन शॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक ग्लेशियर है जो कि इट इज ऑफ अराउंड 5 किलोमीटर का इसका रेडियस है इस ग्लेशियर का। ये ग्लेशियर है कहाँ पे, ये माउंट ब्लैंक पे है ये ग्लेशियर। आपको लोकेट करना है अपने मैप पे माउंट ब्लैंक कहाँ पे है। अब दिक्कत क्या है, ये ग्लेशियर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट कलर दिख रहा है, ठीक है। ये जो ग्लेशियर है इसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर दिख रहा है, और ये कलर है क्या, ये पिंक कलर है। ये किस वजह से ये पिंक कलर है, बिकॉज जो सहारा डेजर्ट से डस्ट उठ के जा रही है इस माउंट ब्लैंक की तरफ, इस ग्लेशियर की तरफ, वो डस्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। उस डिपॉजिशन की वजह से इस ग्लेशियर के ऊपर का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ब्लड रेन्स या ब्लड रेन का कॉन्सेप्ट भी फेमस है। जो सहारा से डस्ट डस्ट उठ के जाती है मेडिटेरेनियन रीजन में, उस डस्ट की वजह से जब बारिश गिरती है तो वो बारिश बहुत ही डिफरेंट कलर की होती है, रेड कलर की होती है, जिसको ब्लड रेन भी बोला जाता है, ठीक है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है, ये फ्रांस में है, ठीक है। और इस ग्लेशियर का जब अब कलर चेंज हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द winds which are going to this region. One thing is this which you need to understand and keep in mind, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है। ग्लेशियर का नाम क्या है, ग्लेशियर दुतोर, ग्लेशियर दुतोर, ठीक है, DUTOUR। नेक्स्ट, एक एंशंट, आप जब भी देखो एंशंट, जब भी हम पढ़ते हैं हमारी एंशंट हिस्ट्री तो हमें सेरेमिक्स का एक्सकेवेशन मिलता है। ये सेरेमिक्स होते क्या है, यूजुअली पॉट्स जो हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, खाने के लिए बर्तन, कुछ डिशेस रखने के लिए बर्तन, आपके फ्रूट्स रखने के लिए बर्तन, है ना। तो ये सेरेमिक्स एंशंट एज से ही बनाए गए, पॉटरी बनाई गई, उसको हीट अप किया गया और उस पॉटरी को हम लोग यूज कर रहे थे एंशंट टाइम से, और अभी भी यूज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है डिजाइन और उसकी प्रोसेसिंग में। यहाँ पे चीज ये है जो डिस्कस की जा रही है इस एडिटोरियल में, इस न्यूज आर्टिकल में, कि हमें दो जगह से मिले हैं सेरेमिक्स, और 25,000 साल पुराने सेरेमिक्स भी हमें मिले हैं। तो पॉटरी बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, 25,000 साल से मिल रहा है हमें पॉटरी का ट्रेडिशन। पहले हमें कहाँ पे मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और
कीजादी और कीलाड़ी एक्सकेवेशंस, जो कहाँ पे हुई है, तमिलनाडु में। दो जगह पे हमें ये सेरामिक एक्सकेवेशंस मिले हैं। दूसरा, ceramics can handle shear, they cannot, and they do not handle the shear or sliding or the stress, but they get preserved। क्यों? क्योंकि उनमें ये ताकत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा हीट को झेल सके। ठीक है, साइंटिस्ट इनका यूज करते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये सेरामिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है आज के मॉडर्न टाइम में। ठीक है, और सेरेमोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है आज के मॉडर्न टाइम में। तो स्पेस शटल्स में यूज होती है ये, स्पेस में लेके जाने के लिए। ठीक है, और वहां पे क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक री एंट्री में ये यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट, द हीट इन माइक्रोवेव फर्नेसेस, न्यूक्लियर फ्यूर, सेमीकंडक्टर्स, फाइटिंग द एयरक्राफ्ट विंडोज, टोमोग्राफिक स्कैनर्स, इन सब जगह पे सेरामिक्स यूज होती है और सेरेमोग्राफी यूज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, उसमें हाई लेवल टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसमें होती है। इसके साथ साथ सुपर कंडक्टिविटी को लेके भी इसका यूज़ किया जाता है, और जिसके जो ये यूज़ था सुपर कंडक्टिविटी को लेके, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी को लेके सिरेमिक मटेरियल डेवलप करना, इसमें नोबेल प्राइज भी मिला था दो साइंटिस्ट्स को 1987 में। ठीक है, दैट इज हाउ ceramics गेट्स इंपॉर्टेंट इन आवर syllabus. This is the last thing which we discuss in our daily news analysis। और ये क्या चीज है कि क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2023 के पेपर में। क्वेश्चन में पूछा गया था दैट इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन वेस्ट। इंडियन डायस्पोरा वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न कंट्रीज में हाई लेवल पे पहुंच गया है। जैसे सीईओज हमने बहुत सारी हाई लेवल कंपनीज, हाई लेवल एमएनसीज के देखे, इंडिया के डायस्पोरा से है। नाउ यू नीड टू डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। ठीक है, कि हमारा डायस्पोरा अगर वेस्ट में बहुत ही हाई लेवल एमएनसीज के पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, उसके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए किस चीज के, कि हमारा डायस्पोरा कहाँ कहाँ पे होल्ड कर रहा है पोजीशंस। जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, अजय बंगा, ऋषि सुनाक, कमला हैरिस, they all belong to India in their generational trees। ठीक है, there are 31 million individuals who belong to Indian diaspora in western countries। अब इसका हेल्प क्या हो सकता है? रेमिटांसेस, ब्रेन गेन, एफडीआई, लॉबिंग एंड एडवोकेसी, इंडिया कॉकसस, इंडिया यूएनएससी, इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए, बाकी सारी चीजें अंडर ऋषि सुनाक गवर्नमेंट। these all things can be achieved। just go through the answer and enrich yourself and your preparation। With this, I wish you all the best. Have a good day ahead.